Hi everyone, today we are starting with aspects of staffing. Aspects of staffing constitute of recruitment, selection and training. We've already done these three terms in terminology as well as process of staffing. So what do we mean by recruitment? Recruitment means searching for prospective candidates. So when an organization takes out an advertisement after creating an organizational structure as per the job description, they take out the advertisement and the kind of person they want to apply for their organization. What are they doing? They are just recruiting in the organization. So recruitment refers to the process of finding possible candidates for job or a function or searching for prospective employees or candidates. Now, what does the process of recruitment constitute of? It has first point. You see, when you talk about the first point of the process, it is like here, it comes out to be A. Identification of different sources of labor supply. So first of all, you have to identify the different sources. When we talk about the different sources of labor supply, there are two sources. One is internal source and the other is external source. Internal source is within the organization and external source is outside the organization. Internal source usually is a beneficiary or beneficial to an organization which is not a new one, which has been existing for a very long time. But when we talk about the external source, usually we take it for a new organization or when there is shortage of people in the already existing organization. So there are two sources, like I told you, identification of different sources of labor supply. So there are two sources, we will be doing it very soon, internal and external, otherwise it's written there. Assessment of their validity. Now validity means what? Now we assess, like I just now told you, assessment in what terms? हमारी अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम इंटरनल सोर्स से ले सकते हैं, नहीं तो हमें एक्सटर्नल सोर्स की ही हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और हमारे पास कोई भी एम्प्लॉयज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं. सो वी मे गो इन फॉर एक्सटर्नल सोर्स. और कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें भी इंटरनल सोर्स इतनी बढ़िया नहीं होती, तब भी हमें एक्सटर्नल सोर्स लेनी पड़ती है. सो वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये चीज़ हमारे लिए ओके है कि नहीं है. नेक्स्ट, दिस इज योर बी स्टेप. नेक्स्ट इज चूजिंग द मोस्ट सूटेबल सोर्स. तो आप कौन सी सोर्स चूज करते हो जो आपको सूट करती है, सबसे बढ़िया आपके लिए कौन सी है? एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन यू चूज द सोर्स. सो वॉट एवर सूट्स यू बेटर, दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट काइंड ऑफ सोर्स यू चूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. राइट. नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, inviting applications from the prospective candidates for the vacancy. So अब आपने क्या करा, लोगों से क्या मंगानी शुरू कर दी? एप्लीकेशंस. आपने चाहे एडवर्टिजमेंट किया था, चाहे आपने विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपने क्या कहते हैं किसी उस पर प्लैकेट पे लगाया था या आपने नोटिस बोर्ड पे लगाया था विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कि भाई हमें ये बंदे चाहिए. आपने जिस भी तरह से काम किया था, ठीक है, अगर आप नोटिस बोर्ड पे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लगाते हैं तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो जाती है. लेकिन अगर आप जनरली बताते हैं तो इंटरनली एक्सटर्नली कोई भी अप्लाई कर सकता है और जब लोग अप्लाई करते हैं तो आप उनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सो लास्ट इज इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द वैकेंसीज, जो भी ठीक लगते हैं, जो भी आना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. Now, there are two sources of recruitment. I've already told you, internal and external. Internal is within the organization, external is outside the organization. If you remember, अगर आपको याद हो तो previous video में मैंने आपको objective of recruitment बताया था in staffing process. ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं? Object. दोनों questions अलग अलग है. Objective मतलब होता है goal and object मतलब होता है purpose. So क्या है पर्पस? क्या है रिक्रूटमेंट का पर्पस? है टू अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉयज़. हम लोगों को सिर्फ अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं विद नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिफिकेशन. हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमें लोग चाहिए, जो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है उसके हिसाब से हम लोगों को कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन उनको बता रहे हैं कि आप लोग इस क्वालिफिकेशन के हैं तो ही आप अप्लाई करेंगे इन द एडिक्वेट नंबर फॉर अ जॉब अवेलेबल. ऑफकोर्स अगर वैकेंसीज 3 हैं या 4 हैं तो उतना नंबर हम लिख के भेजते हैं, लोग अप्लाई करी जाते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से देखते हैं. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट हम आते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की कैटेगराइजेशन पे. हम बात करेंगे पहले ट्रांसफ़र की, फिर हम बात करेंगे प्रमोशन की. व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसफ़र एंड व्हाट डू वी मीन बाय प्रमोशन? सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मीन्स कि आप जब अपने लिए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसमें सबसे पहला आता है ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर.
आपने एक एम्प्लॉय को शिफ्ट कर दिया एक जॉब से दूसरे जॉब पे, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन या फिर फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बट डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, पे एट्सेट्रा। आपकी जो डेजिग्नेशन है वो ऑलमोस्ट, कभी कभी डेजिग्नेशन भी चेंज जाती है, लेकिन जो प्रोफाइल रहती है वो सेम रहती है। तो क्या कहते हैं, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, सेम रहती हैं। आपकी रैंक क्या रहती है, जैसे मैंने कहा कि डेजिग्नेशन भी सेम रहती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेशंस का बहुत हल्का सा फ़र्क होता है, लेकिन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र में आपकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती है, आपकी रैंक इंक्रीज़ नहीं होती, कई बार बहुत थिन लाइन डिफरेंस के साथ रैंक का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। सो कॉम्पनसेशन यानी कि आपकी सैलरी जो है वो भी सेम रहती है, आपका स्टेटस, आपका रुतबा भी सेम रहता है, राइट। एंड दिस इज़ what transfer. It is a good source of filling vacancies from overstaffed department। जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा लोग हैं वहाँ से निकालिए और ट्रांसफ़र करके कहीं और भेज दीजिए। क्या हो गया, आपका खर्चा बच जाता है। क्यों बच जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक डिपार्टमेंट में, एक यूनिट में अच्छे लोग हैं काम करने के लिए, आप उनको ट्रांसफ़र करके कहीं और भेज दीजिए ना, दिक्कत ही क्या है। नेक्स्ट, इट इज़ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये ऐसे करके मूव करना, लाइक आई जस्ट डू आउट हियर ओनली, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, सिंपल, सेम लेवल पे, कोई उतार चढ़ाव नहीं हो रहा, शिफ्टिंग हो रही है लेकिन सेम लेवल पे। हेल्थ एंड अवॉइडिंग टर्मिनेशन, अब आपको लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग ना, दे डोंट कम ऑन द सेम टर्म्स, उनकी आपस की जो सेम टर्म्स होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, व्हाट वी ट्राई टू डू इज़, हम उनको टर्मिनेट करने की बजाय, बॉस या सबॉर्डिनेट हो गया या कोई भी हो गया, हम उनको टर्मिनेट करने की बजाय ट्रांसफ़र कर देते हैं, पंगा ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन, हेल्प्स इन रिमूविंग इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस। भाई तुम मुझे नहीं बर्दाश्त कर सकते, मेरा ट्रांसफ़र कर दो किसी और जगह पे, क्या होगा, बड़ा सिंपल सा, मैं वहाँ जाके वहाँ के लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे। जब बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाते हैं ना, बंदा अपने आप को ही बर्दाश्त करना शुरू कर देता है। सो थिंग्स चेंज इन टोटलिटी। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रेनिंग। वाई इट इज़ अ सोर्स ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज जितनी जगह आपका ट्रांसफ़र होता जाता है, हर जगह नए माहौल के साथ, नए जगह के साथ, यू लर्न टू वर्क बेटर। ट्रांसफ़र इज ऑल्सो कॉल्ड जॉब रोटेशन। येस, एक जॉब से दूसरे, दूसरे जॉब से दूसरे, बट नो चेंज इन पे। सो दैट्स व्हाट इज जॉब रोटेशन एंड दैट्स व्हाट इज व्हाट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज प्रमोशन, और प्रमोशन के लिए क्या डिफरेंट है वो भी हम देखेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट विल डू इज विद प्रमोशन। लाइक आई टोल्ड यू, इंटरनल सोर्सेज जो हैं वो दो तरह की होती है, ट्रांसफ़र और प्रमोशन। अब हमारे प्रमोशन पे, प्रमोशन की डेफिनेशन क्या कहती है, इट रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजिशन। हाउ डू वी शिफ्ट द एम्प्लॉय टू अ हायर पोजिशन, जब हम उसको क्या करते हैं, वर्टिकल शिफ्टिंग करते हैं। सो यू आर वर्किंग हियर एंड यू गेट शिफ्टेड हियर, दिस शिफ्टिंग इज व्हाट, नथिंग एल्स बट प्रमोशन। कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई, प्रेस्टीज इंक्रीज हो गई, इज्जत की बात हो गई भाई। फैसिलिटीज़, अभी तक आपको शॉफर ड्रिवन कार्स नहीं मिल रही थी, मिल गई। पे भी इंक्रीज हो गई, स्टेटस भी इंक्रीज हो गया, सब कुछ इंक्रीज हो गया, प्रमोशन है, राइट। इट इज़ वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। वर्टिकल शिफ्टिंग क्यों है, क्योंकि आपको हम हायर लेवल पे शिफ्ट कर रहे हैं, सेम लेवल पे वर्क नहीं हो रहा है। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू इम्प्रूव मोटिवेशन। लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि प्रमोशन जो होता है वो आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है और हिट करता है। आपकी लॉयल्टी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो जहाँ पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ अ ग्रेट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि हम बात करते हैं कि एक जने के प्रमोशन से चेन ऑफ प्रमोशंस होते हैं। कैसे चेन ऑफ प्रमोशन होते हैं, मान लीजिए आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं और आपको प्रमोट करके यहाँ भेज दिया जाता है, तो आप यहाँ प्रमोट होकर आते हैं, तो आपकी जगह पे जो यहाँ पर काम कर रहे थे उनको प्रमोट करके कहीं और भेज दिया जाएगा। सो एंड आपसे जो नीचे काम कर रहे थे यहाँ पर, ही विल ऑल्सो गेट प्रमोशन, वो आपकी वाली जगह पे आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैपेंस। इसकी वजह से क्या होता है, सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। देयर इज एन इंडस्ट्रियल पीस विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ प्रमोशन, एंड that's how we understand promotion. Now next we'll do is difference between promotion and transfer, as well as advantages, disadvantages of internal source of recruitment.
So now we'll start with difference between transfer and promotion and advantages and disadvantages of internal source of recruitment. Starting with the first one, transfer and promotion. This is not given in your book, but it's always better to know how to do it, because there are some points like this point. This was a board question once. Then you have this this one again. It was a board question one, and this is how these questions, these points, they keep on coming as board question. So it's always better to learn them in a tabular form. Promotion and transfer, if we talk about, transfer is shifting of employees from one job to another with no change in rank, responsibility and compensation, whereas promotion is shifting of the employee to a higher position with change in rank, responsibility and compensation. So we take rank, responsibility and compensation, and again here rank, responsibility and compensation. In case a question comes to you that what is the difference between transfer and promotion on the basis of changes being made, so of course rank, responsibility, compensation is not changed in transfer, but in promotion it is changed. That way also you can take it up. Next, the movement. Now in transfer we have horizontal movement, we move like this, but in promotion we have vertical movement. So if you are here, you go to the next level, so vertical movement. Here it helps to avoid termination. Why? I told you that what happens in transfer is, if you are not good with your bosses, you can ask for a transfer, shift somewhere else. So that kind of a thing, people are not required to be terminated if you spend too much of money as the MD of the company. If you spend too much money on training somebody, so it's better not to terminate them, and it's better to transfer him somewhere else, so where he can be more compatible. Here it helps to improve motivation and loyalty, because the moment you tell people they are going to be promoted, they get inspired and they become loyal to the organization. It helps to remove grievances. Of course, yes, if you have any kind of problem or grievances, you can immediately take up a transfer, move to some other place. It's a better option than to quit the job or leave the organization. Whereas promotion helps to increase satisfaction level of the employees. Why satisfaction of the employees is improved? Because it actually leads to a better kind of sense of belongingness to the organization. Since you are promoted, you feel special in the organization. So it gives you a kind of job satisfaction, because if you start from a lower rank and you go to a higher rank, that's a sense of accomplishment. Then it's a tool of training, but this is a tool of psychological benefit or psychological satisfaction. Why? Because if your boss is promoted and then you are promoted and the lower level guy is promoted, all of you keep on getting promotion. So this chain of promotion always brings out a kind of industrial peace. People don't fight amongst each other. Why? Because they know that next is going to be their turn to be the boss. So a kind of good friendly situation is created always. Right. Next we come to advantages of internal source of recruitment. Now first is it improves motivation. Yes. Internal source improves motivation. Why? Because employees are motivated to they first improve their performance. Why? If you select someone from within the organization, like you promote someone, they feel special about being promoted, and immediately their working capacity increases, because they have to prove themselves to the next post where they have been promoted. Promotion leads to chain of promotion, like I told you, one after another. So employees work with commitment and loyalty. Their loyalty increases, their satisfaction level increases, and peace prevails in the organization. Because of what? Because of chain of promotion. Simple process. Indeed, internal source of recruitment, you're already there in the organization, you know the system and working of the organization. It's a very simple process. Either we're going to transfer you or we're going to promote you. We transfer you, still you're in the same organization. We promote you, still you're in the same organization. So internal recruitment simplifies the process. Why? Because candidates already working can be evaluated easily, and moreover they know the system of working. Becomes economical. You don't have to spend any money. You already just evaluate, see their report, their performance, and promote them. More reliable way, as candidates are already known. Same. So they are already working, they are already known. It becomes a better source of recruitment. Next comes tool of training. Now why transfer is a tool of training? Because if you why internal recruitment is a tool of training? Because transfer is a tool of training. It's like job rotation. You rotate somebody from one job to another with no change in money. Responsibility change नहीं होती. हाँ,
जॉब प्रोफाइल चेंज हो सकता है, उसी लेवल पे हो सकता है। मैंने पहले भी बताया था, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक पोस्ट पे आपको कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन दूसरे जहाँ आप ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ पर कोई और पोस्ट मिल जाती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो सकती है, लेकिन जब ट्रांसफ़र होता है तो सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती, डेजिग्नेशन सेम रहता है। और अगर डेजिग्नेशन थोड़ा बढ़ भी जाता है तो सैलरी सेम होती है, क्योंकि आपका सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ होता है। तो डेजिग्नेशन लोअर या अपर नहीं देते हैं, जहाँ पर आप डेजिग्नेटेड थे उसी टाइप का डेजिग्नेशन देते हैं। तो क्या हो जाता है कि जो ट्रांसफ़र होता है इट बिकम्स अ टूल ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में फिनिश पा जाते हैं। आई विल गिव यू एग्जाम्पल, लाइक इन माई स्कूल वेर आई एम टीचिंग, आई एम अ क्लास टीचर 1 year. Next year I become an activity in charge. Next year I take up maybe annual function activities. तो क्या है, मैं सब चीज़ों में थोड़ा मुझे क्या मिल रहा है, आई एम गेटिंग अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो जॉब रोटेशन हो रही है पर मेरी सैलरी नहीं बढ़ती है, सिर्फ हाँ इंक्रीमेंट जो मिलना है एवरी ईयर वो मिलता है, लेकिन लगातार चेंज ऑफ जॉब्स होता रहता है। उस चेंज ऑफ जॉब से क्या होता है कि आई बिकम अ वेल ट्रेन्ड person to work in the organization. So I can take up better jobs, or maybe sometimes when I want to quit from the organization, I want to leave the organization, I can go to another organization at a higher post also, because I'm well trained. So transfer serves as a important tool of training, prepares employees for higher jobs. There is no need of induction training. Very true. Induction training मतलब क्या? Orientation, familiarization और induction training same है। हमें आपको कोई भी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वेल नोन टू दी ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर वेल नोन टू द रूल्स, रेगुलेशन, पीपल सराउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रादर द एनवायरमेंट। कवर्स शॉर्टेज। नाउ हियर अगेन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में वो किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफ़र। जहाँ पर ओवर स्टाफ लोग हैं ट्रांसफ़र करो, और आपके जहाँ पर अंडर स्टाफ्ड है वहाँ पर पहुँचा दो और काम पूरा हो जाता है। सो यू डोंट हैव टू गेट पीपल फ्रॉम आउटसाइड। Transfer has a benefit of shifting surplus workforce to where there is shortage of staff or workforce. जहाँ पर लोग कम काम कर रहे हैं, वहाँ जहाँ पर कम लोग कम काम नहीं कर रहे, जहाँ पर कम लोग हैं काम करने के लिए, आप वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर दो। Economical. Filling position from within the organization is always economical, cheaper. Why? Because you don't have to spend any money. ना आपने एडवर्टाइजमेंट निकालना है, ना आपने कुछ, एक वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत होता है कि हाँ भाई ये पोस्ट खाली है, लोग जंप करते हैं फॉर टेकिंग अप अ न्यू काइंड ऑफ जॉब, बिकॉज उनको भी लगता है कि हाँ भाई अलग अलग तरह के जॉब करेंगे, जितना जॉब रोटेशन करेंगे उतना हमारे को ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, जितनी हमें ट्रेनिंग और नॉलेज मिलेगी उतना हम बेटर प्रोस्पेक्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। सो फिलिंग जॉब्स इंटरनली इज चीपर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्स। नाउ वी टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्स, स्टार्टिंग विद इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? इनब्रीडिंग मतलब अगर आप एक जगह पे ही रहते रहें तो आप वहाँ पर क्या कर जाते हैं, वहीं पे आप उसी कुएं के मेंढक बन जाते हैं, इज द राइट वर्ड, राइट? इनब्रीड। तो क्या होता है इंटरनल सोर्स में? सबसे पहली चीज़ क्या है? इनब्रीडिंग। व्हेन वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू इंटरनल प्रमोशंस, आपने प्रमोट किया, इंटरनल प्रमोशन से लोग फिलअप हो रहे, द स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। बाहर से आप कोई नए लोग नहीं लेकर आ रहे, तो जो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, जिस थिंकिंग प्रोसेस के साथ है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं होगी, कुछ नया नहीं आएगा, वही चीज़ कंटिन्यू रहेंगी। हाँ वो प्रमोट हो सकता है नई जॉब पोजीशन के लिए, बट कुछ नया नहीं आएगा। सो वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू इंटरनल प्रमोशंस एंड स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। कंप्लीट रिलायंस ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स डेंजर ऑफ इनब्रीडिंग। ओ यहाँ पर आ गया इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग हो जाती है, स्टॉप्स इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, कोई नया नहीं आ सकता और नहीं आ पाता, तो जिसकी वजह से इनब्रीडिंग ज़्यादा डेवलप हो जाती है। सो ये प्लीज जस्ट नोट दिस इज आई एन इनब्रीडिंग आउट हियर, राइट? लिथार्जी, द एम्प्लॉय टेंड टू बिकम लिथार्जिक। वाई? दे बिकम लेजी। क्योंकि क्या होता है? टाइम बाउंड प्रमोशन, पता है कि 3 साल बाद प्रमोशन मिलना है, काम करके क्या करना, ज़्यादा उतना ही करेंगे ना, जो मर्जी हो जाए, जितना काम करेंगे प्रमोशन तो मिलना ही है। So people tend to become lazy. They don't want to work much. Next, unsuitable for new organization. Of course, yes. नई ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे हो सकता है? उनका तो नया ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो वो बाहर से लोग लेकर आएंगे, उनको रिक्रूट करेंगे, फिर जब 1-2 साल ऑर्गेनाइजेशन को हो जाएंगे, जब ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी पुरानी हो जाएगी, फिर इंटरनल सोर्स यूज़ करेंगे। सो अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्स।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी वैकेंसी इंटरनल सोर्स से नहीं पूरी कर सकती, वैसे भी एक्सटर्नल सोर्स जरूरी होती है। नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन। द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज में बी हैम्पर्ड। अब ये क्यों हैम्पर हो जाता है? पता है टाइम बाउंड प्रमोशन होने, और साथ में क्या है, चेन ऑफ प्रमोशंस। एक का प्रमोशन हुआ, दूसरे का होगा, तीसरे का होगा, सबका होता जाएगा प्रमोशन। तो इसका मतलब क्या, कंपटीशन करने की जरूरत ही क्या है? इंडस्ट्रियल पीस, इकट्ठे मिलकर काम करते, चुपचाप काम करते, कोई दिक्कत ही नहीं है। इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वाई? आपको आज एक जगह पे रखा, काम कराया, कल दूसरी जगह पे लेकर गए, फिर से काम कराया, फिर तीसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया, काम कराया। अब जहां एक जगह पे आपको रह के अपने रिजल्ट्स प्रूव करने थे, हो ही नहीं पाए। सबऑर्डिनेट, वो क्या था, वन ऑफ द प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या है कि आपको एक टाइम के लिए वहीं पे रखना चाहिए जहां पर आप अपने रिजल्ट्स को प्रूव कर सको। टाइम तो दिया नहीं आपको, बार बार शिफ्ट करते गए, क्या होगा, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, क्योंकि हर जगह एडजस्टमेंट करना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता। सो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। That's all for today. Next video, we'll be taking up external source of recruitment types as well as merits and demerits.